My name is Priyansh Sen, and standing with me my two friends, Mr. Rishan Jindal and Mr. Nitendra Chaudhary. But before starting, we all three would like to thank Ms. Reshuman because she is the one who has given us this great opportunity to stand here and deliver this great presentation on the topic Introduction to CSS and its properties. But in properties, we will mainly discuss three properties, that is transform, transition and display. I will be explaining transform, he will be explaining transition, and then Prashant will explain display. But firstly, let us look at the list of things which we are going to discuss in today's session. The list is as follows. As you can see, history of CSS uses. The main thing is class and its sector, and the most important things of our session: transform, transition, and display. Now, I would like to invite Mr. Nitendra Chaudhary to come and brief us on the history of CSS. Now, when we are talking about the history of CSS, in 1994, Akon Gilling introduced the idea of CSS. Then, after that, in 1996, CSS first version was released. In 1996, CSS 3 was released, and 1.6.3 also began. In 1999, CSS 3 was released in several modules between 1999 and 2018. It had unique different features, unlike previous versions. Now, what are the uses of CSS? It is used to style HTML elements which make the website more interactive. It also changes overall look and feel of website. It makes website more interactive. Now selectors. Selectors are used to style over HTML elements. Class selector is used to apply styling to specific HTML tags. It is used to style multiple elements at once. It is targeted by using dot symbol before element's name. ID sector is used to apply style to element. It is unique and can be single element. It is targeted by using hash symbol before element name. Okay, so now coming to the main topic, that is transform property. So transform property is used to make changes in form, appearance or structure. The transform CSS property lets us rotate, scale, skew and translate an element. जो आप देख रहे हैं रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट, ये इस प्रॉपर्टी के जो है फंक्शंस हैं, हम आगे इनको डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स. ओके, सो ट्रांसफॉर्म का जो सिंटैक्स है बेसिक वो आप देख सकते हैं. अगर हमें कोई भी ट्रांसफॉर्म ऐड नहीं करना, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिख रहे हैं सिंटैक्स फॉर्म में तो हम सिंपली लिखते हैं ट्रांसफॉर्म नाउ. अगर हमें एक फंक्शन उसके अंदर इंक्लूड करना है तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन, और अगर मल्टीपल फंक्शंस ऐड करने हैं तो मल्टीपल फंक्शंस भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म किसी भी जो एलिमेंट की उसकी अपीयरेंस मतलब क्रिएट करने के लिए अपीयरेंस को साइज करना. फॉर एग्जांपल रोटेट करने के लिए कोई इमेज है तो हम उसको उस पे क्लिक करें तो वो रोटेट हो जाएगा जो फिट करने के लिए डिवीजन. सो ये हमारे मेन फंक्शंस है रोटेट, स्केल, स्क्यू, ट्रांसलेट एंड मैट्रिक्स. नेक्स्ट, ओके, सो रोटेट हमारा जो पहला फंक्शन है, इट रोटेट्स एन एलिमेंट क्लॉकवाइज फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन. काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग नेगेटिव वैल्यूज. जैसे कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, ये जो है रोटेट फंक्शन है और इनके आर्गुमेंट लेगा एंगल. अगर इसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो जो रोटेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें मिलेगी. हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा जो है अपना प्रोग्राम क्रिएट किया है HTML और CSS के अंदर. HTML के अंदर मैंने एक डिवीजन बनाई है नॉर्मल नाम की, और एक div क्लास रोटेट दी है. हमने HTML में अपने एक डिवीजन ली है नॉर्मल नाम की और एक क्लास दी है रोटेटेड. फिर यहाँ पर जब मैं CSS के अंदर आया तो मैं एक यहाँ पर स्क्वायर लूंगा, जिसकी मैंने विड्थ और हाइट 18 पिक्सल दी है और स्टाइल ब्लू कलर का वो लिया है. फिर मैं उसको टारगेट करता हूँ और टारगेट करते हुए मैंने जो है प्रॉपर्टी दी है ट्रांसफॉर्म नाम की, उसके अंदर रोटेट फंक्शन यूज किया है और डिग्री दी है 45 डिग्री. आगे आपको आउटपुट दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं नॉर्मल मेरा एक एलिमेंट था और जब मैंने उसके अंदर रोटेट नाम की प्रॉपर्टी लगाई 45 डिग्री. आपको आता है जी मैम. ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है. जब मैं नेगेटिव 45 देता तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ओके, स्केल
इसके नाम से ही पता लगता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज होता है किसी भी एलिमेंट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, सिंपल लिखना है स्केल, और फिर ये दो वैल्यूज ले सकते हैं। इसके बहुत तरीके हैं लिखने के, जैसे वैल्यू x और वैल्यू y। यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। चाहे तो अगर हम स्केल के आगे x लिख दें और फिर वैल्यू दें तो सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू लेगा, और अगर स्केल के आगे मैं पहले ही y लिख दूं ब्रैकेट से बाहर और फिर एक वैल्यू दूं तो वो y की वैल्यू कैसे से मिल जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फंक्शन डाला स्केल, और फिर मैं ब्रैकेट में पहले लिखा है 0.5। 0.5 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मेरी 50 पिक्सल का साइज था तो वो 25 पिक्सल का मेरे पास जो स्क्वायर था वो हो जाएगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी यूनिट का यूज नहीं होता। पिक्सल जैसे हमारे पास एक यूनिट है, हम कोई इसमें यूनिट यूज नहीं करते, ये मल्टीपल की तरह से यूज किया जाता है। 0.5 एक मल्टीपल है 1 का, यानी कि वो हाफ हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 1 2, यहाँ पर 1, 2 इसलिए लिखा है कि x एक्सिस में वो 1 टाइम्स यानी कि जितनी की उतनी ही रहे, बट y एक्सिस में साइज जो है वो डबल है। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है मेरा, ये थोड़ा इसलिए लॉन्ग होता है। ओके, स्क्यू it skews an element along the x or y axis by an angle or value। इसका सिंटेक्स भी सेम है, पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी फिर फंक्शन में एंगल x और एंगल y, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में मैं दो एंगल वैल्यूज दे सकता हूं। ये आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक सीधा बॉक्स नहीं है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया था, बट ये सीधा नहीं है, ये स्क्यू हो चुका है बाय 25 डिग्री। और यहाँ पर दो वैल्यू मैंने दी, स्क्यू x और स्क्यू y। इसका मतलब ये x एक्सिस में भी रोटेट हुआ है और y एक्सिस में, सॉरी रोटेट नहीं, स्क्यू हुआ है, थोड़ा टिल्ट हो गया। नेक्स्ट ओके, ट्रांसलेट इट मूव्स एन एलिमेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन। किसी अगर कोई एलिमेंट अपनी करंट पोजीशन में फिलहाल है तो उसके रिस्पेक्ट में वो जो है मूव हो जाता है। जैसे मार्जिन हम देते हैं, ये कुछ उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज will move the element right on the x axis or down on the y axis। Conversely, negative values will move the element left on the x-axis or up on the y-axis। Any reference value can be used। यहाँ पर हम इसे px में ले सकते हैं, pm में ले सकते हैं, no problem। सिंटेक्स हम देख सकते हैं, ये भी सेम है, पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, उसके अंदर ट्रांसलेट फंक्शन और वैल्यू x और y में मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैंने सेम एग्जांपल दिया है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रांसलेट कराया और 3em 3em, यानी कि 3em वो x में जाएगा और फिर 3em वो y में आएगा। इसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव करके चेंज भी कर सकता हूं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट ओके, सो ओरिजिन, यहां पर आप देख सकते हैं ओरिजिन क्या है। देखिए, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर था, जब मैंने स्क्वायर के ऊपर रोटेट नाम की प्रॉपर्टी लगाई थी, तो जब वो रोटेट हुआ था वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट हुआ था ऐसे। बट मैं चाहता हूं कि अब ये रोटेट हो, बट अपनी एक्सिस के थ्रू ना हो, मैं चाहता हूं कि रोटेट हो इस तरीके से। तो ओरिजिन मैंने क्या लिया, ये मेरा जो कोना था ये ओरिजिन हो गया और इसके अलोंग मैंने जो है रोटेट कर दिया। ये रोटेट प्रॉपर्टी से कुछ इस प्रकार अलग है। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इसे रोटेट किया है, ट्रांसफॉर्म रोटेट -25 डिग्री, और ओरिजिन मैंने यहाँ पर 100% दे दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर ये रोटेट हुआ, ना कि इसकी एक्सिस पे। Transition property. Now I would like to again invite Nitin Chaudhary who will explain about transition property. Now what is transition? Transition allows you to change property value very slowly over duration of time. There are 4 types of transition property: transition property, transition duration, transition timing function, and transition delay. Now in transition property we have to mention CSS property where we have to add transition effect, मतलब जिसमें हमें effect add करने हैं वो यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। और transition duration is equal to set the time for transition effect। transition timing function, these are of many types like linear, easy, ease out। अगर linear हो तो उसमें हमारी जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड होगी हमारी जो कांस्टेंट होगी, जो फाइनल होगी वो कांस्टेंट होगी, जब हम ट्रांजिशन इफेक्ट पे यूज करेंगे। ट्रांजिशन डिले, अब जब हम उसको ओवर करेंगे उसके कुछ कितनी देर बाद वो चलेगा, ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा वो उसको डिफाइन करेगा। By using shortened property, we can use all property at once। Here is the syntax of this property. First we have to add property, then duration, then timing function, then delay। Now Mr. Ishan Jindal will explain you about display property. Now explaining display property. Display property is used to define about the type of space element take on the website। हर एक एलिमेंट के
पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट भी हम उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट वी कैन चेंज दिस प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू यूज CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू चेंज इट। अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम किसी एलिमेंट की भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। हम इसे टारगेट इस टाइप से करते हैं, जैसे हमने एक एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट किया, उसके बाद हमने डिस्प्ले यहाँ पे कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू दी। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि ब्लॉक, लाइन, फ्लैग्स एंड ग्रिड, और ये मेनली हम यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप का लेआउट बनाने के लिए, लेकिन एडिशन में इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लैग्स और इनलाइन ग्रिड भी है। इसमें डिफरेंस क्या है? इनलाइन के साथ अगर हमने ब्लॉक लगा दिया तो यानी वो इनलाइन तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ब्लॉक किया जाएगी। इसी तरह इनलाइन फ्लैग्स और इनलाइन ग्रिड की है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के, जैसे कि हेडिंग टैग्स H1 से H6 तक, और ये पैराग्राफ, फॉर्म, हेडर, फुटर और सेक्शन। और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि स्पैन, एंकर टैग और इमेज टैग। डिस्प्ले ब्लॉक का यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि आपको पता है स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है और हमने स्पैन में यहाँ पे टारगेट करके इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे पूरा ब्लॉक ले लिया है, यानी एक ब्लॉक पूरी ले ली है, पूरे होल विड्थ ले लिया जो भी वेबसाइट की विड्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन क्या करता है, पहले ये देखते हैं यहाँ पे div tag जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्प्ले को इसकी इनलाइन कर दिया है। और इनलाइन करने से क्या होगा, वो ब्लॉक ना लेके जितना उसके अंदर कंटेंट है उतने में वो कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे क्या होना चाहिए था, इसे पूरा ब्लॉक यहाँ पे देना चाहिए था क्योंकि एक div है, लेकिन ये सिर्फ एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। डिस्प्ले फ्लैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप जैसे कि हेडर वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमने कंटेनर में एक प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन ये बिफोर फ्लैग्स है, अभी हमने इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो आप इसका आउटपुट देख लीजिए। तो सारे डिव एलिमेंट्स, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो सारे डिव एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। नेक्स्ट, और अब हमने यहाँ पे लगाई है फ्लैग्स प्रॉपर्टी, तो हमें कंटेनर में देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और जैसे हम डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैग्स डायरेक्शन। फ्लैग्स डायरेक्शन ये बाय डिफॉल्ट जो होती है वो जब हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देते हैं उसके बाद बाय डिफॉल्ट रो होती है, लेकिन अगर हमें उसे कॉलम में दोबारा से लेके आना है तो हम वहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन में कॉलम दे देंगे, तो दोबारा से ऐसे ही आ जाएगा जैसे कि हमने पहले आउटपुट में देखा। इसके साथ है अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट, ये मोस्टली यूज होता है। अलाइन आइटम्स का मतलब क्या है कि सारे के सारे आइटम्स जो भी उसकी हाइट है, चाहे आप स्क्रीन की जो 100 px की हाइट होती है उसके सेंटर में आ जाएंगे, मतलब वर्टिकली सेंटर हो जाएगा ना कि हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट फ्लैग्स स्टार्ट रहता है, यानी फ्लैग्स देने के बाद सारे के सारे फ्लैग्स के स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जो फ्लैग्स के एलिमेंट्स। आइटम में हमने यहाँ पे आइटम में कुछ नहीं है, आप जैसे कि हमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इन्हें लाइन बाय लाइन आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फ्लैग्स है तो ये इनलाइन ये फ्लैग्स बॉक्स बन चुके हैं और ये सारे के सारे एक लाइन आ गए। आपने देखा होगा जैसे कि आप होम, अबाउट अस और कांटेक्ट वगैरह हेडर में यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी इस चीज की है। अब ये डिस्प्ले ग्रिड, आपको कोई टेबल लाइक फॉर्मेट बनाना है तो ये डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज में आती है। तो ये कंटेनर में हमने दिया डिस्प्ले ग्रिड, उसके बाद एक कीवर्ड है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब हमें जितनी भी वहाँ पे रोज चाहिए, अगर हमें उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट करा देनी है तो हम जैसे कि हमें वहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए तो हमने यहाँ पे 4 बार फोटो करके यहाँ पे दे दी वैल्यूज। अगर आपको यहाँ पे 5 चाहिए तो आप दोबारा से एक फोटो लगा सकते हैं या फिर आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा।